Okay, if we start with enzymes, so let's first we define what are enzymes actually. The definition of enzymes is enzymes are biological catalyst which speed up a chemical reaction by lowering the activation energy. So, I mean, enzymes are biological catalysts which speed up a chemical reaction by lowering the activation energy. They are protein in nature and remain unchanged after any chemical reaction. So this is the definition of enzyme. Now we discuss this definition in detail. Enzymes are biological catalysts. You know what are catalysts? Yes. What they are actually? Yes, Maria? Oh, a substance that increases the rate of a reaction. Well, that's how Yes, much. Hadi, you know something about? Really do. Okay, so catalysts basically क्या होते हैं? They are the substances which actually speed up the rate of reactions. Any chemical, any substance that or any factor even that can speed up any chemical reaction. Even if you take the example of fire, that is a sort of catalyst. Heat, a catalyst, is it? So in chemistry, in chemical reactions, we are having multiple type of catalysts to speed up any chemical reaction. Okay, when we add biological catalyst, it means when this catalyst is organic in its nature and is present in the body of living organisms. Okay, so that is the reason we call these enzymes as biological catalysts, because they are present in the body of living organisms and basically they are made up of organic compounds as well. तो ये एक बड़ी वजह है कि आप इन एंजाइम्स को नाम देते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. ओके, देन दे स्पीड अप केमिकल रिएक्शन. वो हमने पहले देखे थे, कोई भी जो कैटलिस्ट होते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ कैटलिस्ट? जस्ट टू स्पीड अप एनी केमिकल रिएक्शन. देन बाय लॉरिंग एक्टिवेशन एनर्जी. ओके, अगर हम स्पीड अप की बात करते हैं कि ये किस तरह किसी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, तो छोटी सी एग्जांपल देता हूं. देखिए, अगर आप मीट खाते हैं, इवन इफ यू टेक अ पीस ऑफ मीट, तो it takes almost 4 to 5 hours to digest that piece of meat, but in the presence of enzymes. अच्छा जी, इसके एब्सेंस के अंदर अगर सपोज के एंजाइम्स नहीं होते, कैन यू इमेजिन this single piece of meat will take 40 years to get digest. Is it clear? So now, when this is the effect of enzyme, so millions times there will be increase in the rate of reaction. Enzymes जो होते हैं वो किसी भी chemical reaction के अंदर million times उसकी speed को तेज कर देते हैं. बड़ी common सी एक example है ये हमारी बॉडी में जो फास्टेस्ट एंजाइम होता है,
वो कार्बनिक एनहाइड्रेज है। कार्बनिक एनहाइड्रेज जो कि कैटलाइज करता है, रिलीज करता है पर सेकेंड 600,000 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। अच्छा जी, हम पढ़े एंजाइम्स, और एंजाइम्स को हमने पढ़ा कि एंजाइम्स क्या है, दे आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट व्हिच स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को तेज कर देते हैं। और हमने पढ़ा कि वो मिलियंस टाइम जो स्पीड होती है उसको तेज कर रहे होते हैं। सो आई जस्ट हैव गिवन यू एन एग्जांपल, द फास्टेस्ट एंजाइम दैट इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी दैट कैटलाइज कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड आप बॉडी से रिलीज करते हैं लंग्स के थ्रू। तो ये कार्बनिक एनहाइड्रेज जो होता है ये करता है कि उस कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ मिला के कार्बनिक एसिड बनाता है बेसिकली, ठीक है। क्योंकि आप कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में इसको अपने प्लाज्मा या रेड ब्लड सेल के ऊपर नहीं ट्रांसपोर्ट कर सकते, ठीक हो क्या। खैर वो क्यों नहीं हो सकता, विल डिस्कस लेटर। अब यहाँ पे अगर आप देख लीजिए कि कार्बनिक एनहाइड्रेज अगर इतनी स्पीड बढ़ा है तो ऑब्वियसली ये देखिएगा 4 घंटे और 40 साल का डिफरेंस आप देखते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंड इन द एब्सेंस ऑफ, क्लियर। देन हमने फिर ये देखा कि एंजाइम्स जो होते हैं दे स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा जी, अब इसमें अगर आप देखिए तो एंजाइम्स किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को तेज तो कर रहे हैं, लेकिन कैसे तेज कर रहे हैं, focus on these words, by lowering the activation energy. So what is activation energy? So we need to know about activation energy. When we define activation energy, जब हम इस एनर्जी को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं the minimum amount of energy, the minimum amount of energy that is required to start a chemical reaction. किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी की मिनिमम अमाउंट हमें रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी का नाम। कोई भी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर ले तो आपको एक मिनिमम अमाउंट चाहिए होती है एनर्जी की उसको स्टार्ट करने के लिए। चलिए देखते हैं, जैसे कि आप देखिए आपके पास एक बस है और एक साइकिल है, बाइसिकल जिसे हम कहते हैं। इन दोनों को पुश करना है, वेयर इट विल बी इजी टू पुश, why? Because you need to use less energy. तो इसको स्टार्ट करने के लिए, इसको चलाने के लिए कम एनर्जी जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है। ये हैवी है, बल्कि है, लार्ज है, खुद इसका अपना मैस बहुत ज्यादा है, तो इसको फिर स्टार्ट करने के लिए, पुश करने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा चाहिए। आपने देखा होगा जो मोटरसाइकिल होती है और जो एक बस है, दोनों की जो बैटरीज स्टार्ट करने के लिए होती है, कभी देखिए उनमें बैटरीज पड़ी हुई। मोटरसाइकिल में बहुत छोटी सी बैटरी होती है, जबकि बस के अंदर एक बड़ी बैटरी जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है। व्हाई इट इज सो, ऐसा क्यों होता है? उसकी अगर फर्ज करें ये 12 वोल्ट की, तो कहता है शायद ये 3 वोल्ट की होती होगी। अगर ऐसा इनमें डिफरेंस आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है? क्योंकि वही बात के जो बाइसिकल है या मोटर बाइक जो हमारे पास है, पहली चीज के उसको स्टार्ट करने के लिए लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, उसका मैस कम है, वो छोटी है। लेकिन उसके अगेंस्ट हम अगर देखें कि हमारे पास जो बस है, बस का मैस ज्यादा है, साइज ज्यादा बड़ा है, सो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द इंजन ऑफ अ बस।
क्लियर? अब इसी तरह होता है कि जब आप फूड खाते हैं, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम एक पूरा पोटैटो ही जो है अपने स्टमक में ऐसे ले लें, पूरा फुल फ्लैट स्टमक में ले लें, तो क्या हम उसको डाइजेस्ट कर पाएंगे? But it will take a long time. Even there is a presence of enzymes. Reason क्या है कि इस एक पूरे पोटैटो की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर हम इसको च्यू करते हैं और च्यू करने के बाद हम इसे छोटे छोटे पीसीस के अंदर तोड़ देते हैं, इससे क्या हो जाता है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। एग्जांपल ले लीजिए, फर्ज कीजिए हमारे पास एक पत्थर है, स्टोन है 500 किलोग्राम का, हम इनको कहते हैं इसको लिफ्ट करके आप दूसरे रूम में ले जाएं या किसी और स्टोरी पे शिफ्ट कर दें, तो इट विल नॉट बी पॉसिबल टू लिफ्ट सच अ हैवी स्टोन, क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। अच्छा, उसके बावजूद हमें उस जगह से इसको हटाना है, तो वी विल बी हैविंग एन अदर आइडिया टू इम्प्रोवाइज। क्या करेंगे? एग्जैक्टली, हम एक हैमर लेंगे और इस हैमर से इसको छोटे पीसेस के अंदर तोड़ देंगे। लेट्स सपोज कि कोई 5 किलो का, कोई 10 केजी का, कोई 2 केजी का, कोई 3 केजी का, इस तरह छोटे छोटे पीसेस तोड़ लेते हैं। जब ये छोटे पीसेस तोड़ लिए तो इन तमाम पीसेस को हम इजीली जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। उसकी रीजन क्या है कि इन छोटे पीसेस की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या है, कम। क्लियर? तो जब इनकी एक्टिवेशन एनर्जी है, इनके ऊपर रिएक्ट करना क्या है, आसान। अब ये क्लियर हुआ कि एंजाइम भी यही काम करते हैं। जो काम यहाँ पे किसने किया, हैमर ने किया। हैमर ने क्या किया कि इसने ब्रेक कर दिया लार्ज स्टोन को किसके अंदर, छोटे स्टोन्स के अंदर, छोटे पत्थरों के अंदर। जब बड़े स्टोन्स जो है वो छोटे स्टोन्स में आ गए तो आगे इनको शिफ्ट करना क्या हो गया, आसान। तो यही काम यहाँ पे जो हैमर कर रहा है, यहाँ पे एंजाइम्स के ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं, लो, और एक्टिवेशन एनर्जी लेके कैसे लो हुई, उसको छोटे पीसेस के अंदर तोड़ के, तो एंजाइम भी ब्रेक करते हैं। जो फूड हम डाइजेस्ट करते हैं ना, तो डाइजेशन में जो एंजाइम्स होते हैं, व्हाट दे विल डू इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, एक्चुअली दे ब्रेक डाउन द लार्जर मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वन। ठीक हो गया? जस्ट टू मेक देयर एक्टिवेशन एनर्जी लो, और इस तरह पे उनकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अच्छा, अब उसी रेफरेंस से अगर हम देखें फर्दर, दे आर प्रोटीन इन नेचर। एंजाइम्स जो होते हैं उनके बारे में एक और चीज याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि दे आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बायोलॉजिकल मीन लिविंग मटेरियल। So if we take the example of living materials में like they are the organic material, तो उसमें ये they are made up of protein। तो ये किससे बने हुए हैं, प्रोटीन से बने हुए हैं। और उसके बाद remain unchanged after any chemical reaction। enzymes किसी भी chemical reaction के बाद क्या रहते हैं, they remain unchanged। जैसे आप देखिए यहाँ पे जो हमने हैमर यूज किया है इस पत्थर को तोड़ने के लिए, पत्थर के उसने बहुत छोटे छोटे पीसेस बना दिए हैं। आपने वो 15 या 20 जो पीसेस तोड़ लिए पत्थर के, क्या उस प्रोसेस के बाद इस हैमर को कुछ हुआ? आप इसको दोबारा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो हैमर है जब एक दफा पत्थरों को तोड़ देते हैं तो दोबारा से इसे यूज किया जा सकता है। पत्थर टूट गए, ये चेंज हो गए, हम हैमर जो था वो अनचेंज रहा। तो सेम इज द केस विद दीस एंजाइम्स। इन एनी केमिकल रिएक्शन enzymes will remain unchanged, they just change reactants into the products, mean as this large stone is going to be divided into small stones. In the same way the food that we eat will be broken down by enzymes into small digestible and diffusible particles which we can easily make a part of our bloodstream. So this is the main function of enzyme. Is this clear? Yeah. So that is the main reason when enzymes remain unchanged in any chemical reaction. So that is the reason we can use them again and again. Same enzyme can be used
again and again. Is it clear? So over here we are having two types of enzymes, intracellular enzymes and extracellular enzymes. इनके दरमियान क्या डिफरेंस होते हैं? लेट्स सी. अब देखिए, इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड द सेल, एक्स्ट्रा का मतलब होता है आउटसाइड द सेल. अब आउटसाइड द सेल वो कैसे काम करेंगे? लेट्स सी. अब एक वर्ड होता है इंटर, एक है इंट्रा. पहले इन दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. देखिए, लेट्स सपोज कि हमारे पास ये लाहौर, दिस वन इज इस्लामाबाद, दो डिफरेंट सिटी हैं. इनके दरमियान जो ट्रांसपोर्ट को बस चल रही है, जो लाहौर से कहां पे आती है? इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद से वापस कहां पे जाती है? लाहौर. तो ये आ गई इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट. ठीक है, ये दो शहरों के दरमियान, ये ज्यादा शहरों के दरमियान जो ट्रांसपोर्ट चल रही है वो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट कहलाती है. अगर हम इंट्रा को देखें, सपोज ये लाहौर है, एक बस यहाँ पॉइंट ए से चलती है और ये अपने तमाम जो स्टॉप्स हैं उनको पूरा करके वापस ए पे आ जाती है. तो एक ही शहर के अंदर घूम रही है. ये वाली कौन सी होगी? इंट्रा सिटी. ठीक है, जो विद इन द सेल बाउंड्रीज के अंदर ही सारा कुछ कर रही है, दैट इज इंट्रा सिटी. तो आप इसी रेफरेंस से अगर आप इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स को देखते हैं तो ये वो एंजाइम्स होते हैं जो हमारे सेल के अंदर केमिकल एक्टिविटीज, केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं. With those enzymes which are involved to catalyze any chemical reaction within the boundaries of cell, they are called intracellular enzymes. Clear? ऐसे एंजाइम्स को हम नाम देते हैं इंट्रासेलुलर एंजाइम्स. कैन टेक द एग्जांपल, अमीबा को ही ले लीजिए, जो हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. हमने पढ़ा था इसके अंदर जो फूड वैक्यूल बनता है उसके अंदर कौन से एंजाइम्स होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जो इसके फूड को डाइजेस्ट करने में मदद देते हैं. तो ये एंजाइम्स देखिए एक सेल के अंदर ही डाइजेशन कर रहे हैं. हमारे सेल के अंदर देख लीजिए, वी आर हैविंग माइटोकॉन्ड्रिया, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर रेस्पिरेशन होता है. ठीक है, मीन लाइक क्रेब्स साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है, ये दोनों प्रोसेस होते हैं विल बी कैरिड आउट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया. इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो हमें एटीपी जनरेट करने में मदद देते हैं. हमारा जो फूड होता है, जब उसको ऑक्सीडाइज किया जाता है तो उस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं वो यूज होते हैं. तो ये सारे जो एंजाइम्स हैं वो कहां पर यूज हो रहे हैं? सेल के अंदर. जब किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर एंजाइम सेल के अंदर ही केमिकल एक्टिविटी या कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, उसको आप क्या नाम देते हैं? इंट्रासेलुलर एंजाइम. इनके इंट्रासेलुलर एंजाइम्स वो एंजाइम्स हैं जो अपनी एक्टिविटीज को सेल के अंदर ही परफॉर्म कर रहे होते हैं. जबकि अगर हम एग्जांपल लेते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स की, अब एक बड़ा ये वेग सा कॉन्सेप्ट है जी, सेल के बाहर एंजाइम क्या करेंगे? तो ऐसा होता है कि वो अपनी एक्टिविटीज दे डू परफॉर्म देयर कैटालिटिक एक्टिविटीज आउटसाइड द सेल. सो lot of examples are there which can be cited over here. Let's suppose we take the example of digestion in human. So we can take the example of stomach, even of duodenum. So if it is duodenum, then we are having the stomach. अच्छा, कि स्टमक की जो वॉल्स होती हैं, ये तो हमें पता है कि यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स पाए जाते हैं. वो जो लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स जो होते हैं, जो इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वहां पे जो सेल्स होंगे ना, तो सेल्स तो यहां पर है. ये क्या है? ओपन स्पेस. इट्स अ थैलस लाइक स्ट्रक्चर. सेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन दिस कैविटी. इस कैविटी में कोई सेल तो नहीं है. सेल तो ये जो वॉल है ना स्टमक की, उनके अंदर मौजूद है. ठीक, यहाँ पे सेल बहुत सारे मौजूद होंगे. लेयर्स के अंदर बहुत सारी सेल्स की लेयर यहाँ पे मौजूद है.
लेकिन ये ओपन स्पेस है, एक ओपन कैविटी है हमारा स्टमक जो है। अब आपको पता है जो स्टमक की वॉल्स होती है, दे रिलीज गैस्ट्रिक जूस। This gastric juice will contain, which enzyme it will contain? Pepsinogen. Pepsinogen. This is an inactive form of enzyme. So when it will react with hydrochloric acid, in which it will be converted into pepsin. And what is the function of this pepsin enzyme? It converts protein molecules into polypeptide chains. Means it will break down large protein chains into polypeptide chains. So suppose these are the protein molecules which are present in this cavity. They are not present inside the cell. When gastric juice is released by the walls of stomach, it will contain pepsin enzyme. अब ये जो पेप्सिन एंजाइम है ये क्या करेगा, इस पे आके कैटालिटिक एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा फूड में और इसको छोटी चेन्स के अंदर तोड़ देगा प्रोटीन। क्लियर? अब ये वाली जो डाइजेशन हो रही है ये सेल के बाहर हो रही है, तो वो वाले एंजाइम्स जो कि सेल के बाहर कोई कैटालिटिक एक्टिविटी या केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, दे आर कॉल्ड extracellular enzymes. Clear? Any confusion? ठीक है। अब इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स के बाद फूड इंडस्ट्री, आप देखिए जितने भी आप ये बिस्किट्स बनाते हैं, केक बनाते हैं, पेस्ट्रीज बनाते हैं, पिज्जा है, तो जितने भी आपकी बेक प्रोडक्ट्स होती हैं आप उसमें यूज करते हैं यीस्ट। राइट? वहां पे कौन सा प्रोसेस होता है? एनारोबिक प्रोसेस। तो कोई भी जो केमिकल एक्टिविटी होती है एक्चुअली एंजाइम्स आर इन्वॉल्व्ड देयर। तो हमारी जो फूड इंडस्ट्री है उसमें बहुत सारे जो एंजाइम्स होते हैं दे प्ले देयर रोल ओवर। एंड उसके बाद आप देखिए जितने भी ये बेवरेजेस बनते हैं, ड्रिंक्स बनते हैं या अल्कोहल बनती है, ठीक है, उन तमाम रिएक्शंस के अंदर तो अब देखिए एक तो आ गया फूड इंडस्ट्री, देन उसके बाद फूड इंडस्ट्री के अलावा ये और कहां पर यूज होंगे और किस इंडस्ट्री में यूज होते हैं अदर देन फूड इंडस्ट्री? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, मेडिसिन। आपकी जो मेडिसिन होती हैं, आपकी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है उसमें, देन और कहां पे यूज होंगे? आपकी लोकल इंडस्ट्रीज लाइक वी मेक डिटर्जेंट्स। अक्सर आप टीवी पे एड्स देखते हैं ना कि आप कोई दाग नहीं बचेगा। व्हाट डज दैट मीन? कि दैट डिटर्जेंट विल कंटेन ऑल टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, lipases, proteases, carbohydrates, mean all type of enzymes are present in that detergent. So actually होता ये कि यही एंजाइम्स क्या करते हैं कि आपके कपड़ों पे कोई भी दाग लग जाता है, उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन या फैट्स ही होती हैं जो खाना खाते हैं आप। तो ये उन तमाम मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे? उनकी एक्टिवेशन एनर्जी लो, उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं। जब उनको ब्रेक डाउन करके बहुत छोटा छोटा बना देते हैं तो वो जो अमूमन आप देखिए कि वहाँ पे फोमी सी जो एक लेयर बनती है उसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। जब उसे रिंस करते हैं पानी के साथ तो सारा कुछ बाहर निकलता है, इसलिए वो जो दाग शाग होते हैं वो सारे साफ हो जाते हैं। उसके बाद देखिए फूड इंडस्ट्रीज, बेवरेजेस के अंदर जो है, डिटर्जेंट्स के अंदर, मेडिसिन के अंदर, इवन हमारे जो ग्रोथ हार्मोन्स है उनके अंदर बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पे हम एंजाइम्स को जो है बॉडी के बाहर यूज करते हैं। उसके बाद अगर एंजाइम्स को अगर आप देखिए तो हमने ये देखना है कि एंजाइम्स में किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, जैसे कि एंजाइम किससे बने हुए? प्रोटीन से बने हुए हैं। और ये जो प्रोटीन होती है याद रखिएगा एंजाइम्स आर टर्शियरी स्ट्रक्चर्स, प्रोटीन के होते हैं। 3 डायमेंशनल शेप्स दे हैव,
ये 3D शेप्स होती हैं इनकी। और अमूमन ये प्रोटीन्स कौन सी होती हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन्स। अच्छा, एक और बात याद रखिए, ये भी कॉन्सेप्ट जो है, लाइक अगर हम फाइब्रस प्रोटीन देखते हैं और ग्लोबुलर प्रोटीन्स देखते हैं, ये जो फाइब्रस प्रोटीन्स होती है ना, ये इनसॉल्युबल इन वाटर होती है, क्योंकि अमूमन इनके अंदर जो अमाइनो एसिड्स इन प्रोटीन्स को बनाते हैं वो अक्सर कैसे होते हैं? नॉन पोलर होते हैं अपने आउटर सरफेसेस के। जैसे ये एंजाइम है, इस एंजाइम्स का ये जो साइट है जहां से वो केमिकल एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कंप्लीटली एक एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे अब बड़ी सिंपल सी मिसाल देता हूं कि देखिए ये एक बैलून है, ये अब बहुत सारे बैलून्स लगे होते हैं, आप अक्सर देखते हैं बर्थडे पार्टीज पे। तो जब बर्थडे पार्टी खत्म होती है हम क्या करते हैं? उनको डिफ्लेट करते हैं। किसकी मदद से? पिन्स की मदद से। तो वो जो पिन आपने हाथ में पकड़ी होती है, क्या ऐसा होता है कि आप पूरी पिन उसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो बैलून फटेगा? नहीं। क्या करते हैं? सिर्फ टिप जो होती है उस पिन कैसे लगाते हैं तो बैलून फटते चले जाते हैं। तो इसका मतलब कि उस केमिकल, वो भी समझे केमिकल अगर रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो उसकी आगे वाली सिर्फ टिप होती है वही क्या है? उसकी एक्टिव साइट है, वही उस केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले रही है। सो सेम इज द केस विद एंजाइम, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर पूरा एंजाइम हिस्सा नहीं लेता, बल्कि इसकी भी एक साइट होती है जिसे हम नाम देते हैं एक्टिव साइट। ये वाला हिस्सा इसका एक्टिव साइट है, और ये एक्टिव साइट वाला हिस्सा जो होता है ये किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर केमिकल एक्टिविटी को कैटलाइज करेगा। तो यहां पे आप देखिए कि अगर कोई भी सबस्ट्रेट आके इसके साथ अटैच होती है, सबस्ट्रेट क्या होती है? सबस्ट्रेट कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको एंजाइम कैटलाइज करता है। एंजाइम इसको तोड़ता है मॉलिक्यूल को, छोटे मॉलिक्यूल्स में, छोटे मॉलिक्यूल्स को मिला के बड़े मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। तो कोई भी मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन के अंदर एंजाइम के साथ आके अटैच होता है, उसे आप नाम देते हैं सबस्ट्रेट। ये आ गई आपके पास एंजाइम। और जिस जगह पे सबस्ट्रेट की कंप्लीमेंट्री शेप या उसकी जो साइट है वो आपके अटैच हो रही है एंजाइम की, उस साइट को आप क्या नाम देते हैं? एक्टिव साइट। ये एंजाइम की एक्टिव साइट। और किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर एंजाइम की सिर्फ एक्टिव साइट जो होती है वही शामिल होती है, बाकी पूरा एंजाइम जो है उस केमिकल रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद देन फर्दर हम देखते हैं कि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो एंजाइम्स की केमिकल एक्टिविटीज यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उस पे इफेक्ट करते हैं। अब वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एंजाइम्स की कैटालिटिक एक्टिविटीज या उनके रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं? उनमें पहला तो आप देख लीजिए टेम्परेचर, दूसरा पीएच, और तीसरी चीज जो है वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ये तीन जो है वो फैक्टर्स हम यहां पे डिस्कस करेंगे जो एंजाइम के रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट कर रहे हो। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस टेम्परेचर। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि एंजाइम्स जो है दे वर्क इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब ये है कि बड़ा एक स्पेसिफिक रेंज होती है टेम्परेचर की, उसके बीच बीच में ये एंजाइम काम करेंगे। अगर टेम्परेचर उससे कम हो जाते हैं या उससे ज्यादा हो जाते हैं तो एंजाइम जो होते हैं वो काम नहीं करते हैं, इनकी जो रिएक्शन रेट होता है वो इफेक्ट होता है। लाइक अगर हम देखें
एक ग्राफ बना के 0 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री, 20 डिग्री सेल्सियस, 30, 40, 50 and then 60. This is temperature in Celsius. यहाँ पे का रेट ऑफ रिएक्शन आ जाता है। अच्छा, 0 पे रेट ऑफ रिएक्शन भी 0 होगा। एक बात एंजाइम के बारे में, जब भी आपको क्वेश्चन आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंजाइम्स, रेट ऑफ रिएक्शन, ये 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो हाउ यू कैन ग्रैब फुल मार्क्स? वो कौन से 4 या 5 पॉइंट्स आपने ऐसे लिखने हैं कि आपके यहाँ पे मार्क्स ना करें? उसमें सबसे पहले आप चीज जो लिखेंगे वही जो आपको मैंने बताई, एंजाइम्स वर्क इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये पहला पॉइंट हो गया कि एंजाइम्स जो होते हैं दे वर्क इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, दूसरा इनका पॉइंट ये आता है, यानी पहला आ गया नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, कि एंजाइम्स जो होते हैं वो टेम्परेचर की एक जो नैरो रेंज होती है उसके अंदर काम कर रहे होते हैं। दूसरा बाय और या इंक्रीजिंग राइजिंग एवरी 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, increasing every 10 degree Celsius temperature will double the rate of reaction. लाइक जैसे देखिए जी, यहां से अगर हम 10 तक बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 0 से डबल हो गया। अगर आप फर्दर 10 डिग्री और टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो यहां पे यहां से डबल हो जाएगा। तो बाय इंक्रीजिंग एवरी 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर विल डबल द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, टिल हम यहां पे लिखेंगे टेम्परेचर इंक्रीजेस टिल ऑप्टिमम वैल्यू। आप ये लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, आर रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस टिल ऑप्टिमम temperature. So what is the optimum temperature? Basically the normal body temperature is 37 degrees Celsius or 98.6 Fahrenheit. But over here we are taking it in Celsius. Over here, so suppose this is 37 degrees Celsius. When temperature reaches to 37 up to 40, so there is no further increase in the rate of reaction because this is the peak. Peak always attains when you get the optimum temperature. And what is the optimum temperature of human body enzymes? That range between 37 to 40. Right? So this is the narrow range. Mean over here the rate of reaction will be highest. Further increase in temperature, further increase in temperature will destroy the active sites, will destroy the active sites. This is called denaturation of enzyme. This is called
denaturation of enzymes. So due to this effect, the rate of reaction drops and finally becomes zero because enzymes have been denatured. First, the shape of enzyme was like this. As these enzymes are made up of amino acids, प्रोटीन है ना, तो आप देखिए कहीं पर भी एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स अगर हो, उनको आप हीट करते हैं तो हीट को एब्जॉर्ब करके क्या होता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की क्या होती है, ज्यादा। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़े, काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में कोलाइड तेजी से करना शुरू, उनके कोलिजन तेज हो जाते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपने अक्सर देखा होगा जब आप कभी चाय बनाने के लिए पानी को गर्म करते हैं तो पहले उसमें कुछ इतनी मूवमेंट नजर नहीं आ रही होती पानी की, फिर उसमें बबल्स नजर आते हुए, फिर ऐसा ऐसा पानी जो होता है वो उसकी सरफेस राइज होना शुरू होती है, बॉयल होना शुरू हो जाता है। आफ्टर दैट क्या होगा, उसमें से वेपर्स बाहर आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ऑप्टिमम टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट क्या था, 100 डिग्री सेल्सियस। जब वो ऑप्टिमम वैल्यू पे पहुंच गया, उसके बाद क्या करेगा, वो अपनी स्टेट को चेंज कर देता है कि लिक्विड से वो किस में आ गया, गैस के अंदर, वेपर के अंदर आ गया। सेम इज द केस विद एंजाइम, कि एंजाइम की एक ऑप्टिमम वैल्यू जो थी 40 टेम्परेचर तक थी, जैसे टेम्परेचर आपने 60 कर दिया, 50 कर दिया, तो वहां पे ये जैसे ये गैस क्यों बन रही है, जो मॉलिक्यूल्स के कोलिजन हो रहे हैं वो इतना तेज हो गया है कि उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जा रही है, मॉलिक्यूल्स इतनी जोर से टकरा के रिबाउंड जब होते हैं तो वो सरफेस को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। सो दैट इज द कन्वर्जन फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। यहाँ पर भी जब बहुत तेजी से मॉलिक्यूल टकराते हैं तो वो डी शेप, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। कोलिजन तेज होते हैं ना, तो यहाँ पे वो डिस्ट्रॉय होना शुरू, वाइब्रेशन जो हो रही है। अब देखिए जब वो अर्थक्वेक आता है तो वो शेक करती है जमीन, ठीक है, तो जब शेकिंग ज्यादा होती है तो क्या होता है, कोलैप्स हो जाती है, डी शेप हो जाती है। यहाँ पर भी जब वो मॉलिक्यूल्स तेजी से शेप होना शुरू हो गए तो उसकी जो शेप होती है वो अब डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गई, और एंजाइम्स जो होते हैं वो इस तरह उनकी शेप अब डिस्ट्रॉय होना शुरू। सो वेयर आर द एक्टिव साइट्स, आर गॉन, डिस्ट्रॉयड। जब वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, सो अब क्या होगा कि अब जो सबस्ट्रेट्स होती हैं वो इसके ऊपर आके अटैच नहीं हो सकती, उनकी कंप्लीमेंट्री शेप तो ये वाली थी, तो फिक्स कहां पे होंगी आगे, क्योंकि उनकी एक्टिव साइट्स तो क्या हो चुकी हुई है, डिस्ट्रॉय हो चुकी हुई है। दिस इज कॉल्ड डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम। और एग्जाम में सवाल अक्सर पूछता है कि अगर एक दफा एंजाइम्स जो होते हैं हम उनका 40 तक जो है ऑप्टिमम है, सपोज अगर हम उन्हें 60 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं तो क्या होगा, डीनेचर। एक नंबर आपको मिल गया। अब वो 2 नंबर का पूछ रहे हैं सवाल, अगर हम टेम्परेचर वापस 40 पे ले जाते हैं, what will happen to enzyme, will they work? Why? They have been destroyed, denatured. So now substrate is not complementary, cannot get fixed into the enzyme, so this chemical reaction cannot be catalyzed. Once the denaturation of enzyme is there, it is a permanent change. ये एक परमानेंट चेंज होती है। तो आप यहाँ पे 2 नंबर ये लिख सकते हैं। आप बड़ी कॉमन सी एग्जांपल ले लीजिए, घर में आप जो एग बॉयल करते हैं, एग के अंदर जो व्हाइट कलर की वो जो होता है उसका लिक्विड होता है, दैट इज एल्ब्यूमिन, प्रोटीन है। आप उसको बॉयल कीजिए, वो कैसी हो जाएगी, व्हाइट, सॉलिड बन जाती है, डीनेचर हो गई। आप उसको ठंडा करेंगे वापस लिक्विड बनेगी, क्यों नहीं बनी, डीनेचर हो गई हुई है। सेकंड एग्जांपल आप दूध की ले लीजिए, हम जब दूध को हम इतना ज्यादा बॉयल कर देते हैं कि उसकी सारी प्रोटीन्स जाया हो जाती है, डिस्ट्रॉय, प्रोटीन कहीं पे भी हाई टेम्परेचर पे जाया हो जाती है। तो जो एग है आप देखिए उसको जब ओवर हीट करते हैं, प्रोटीन्स डीनेचर हो गई और वो कोआगुलेट हो गई, डी शेप हो गई, डीनेचरेशन हो गई। मिल्क जो होता है उसके अंदर जो प्रोटीन्स होती है वो कैसे डीनेचर होती हैं कि हम उसे 100 डिग्री 200 300 से भी ऊपर जाकर गर्म कर रहे होते हैं।
जब इतनी हीट पे गर्म करते हैं तो उसके एंजाइम्स होते हैं, उसकी जो प्रोटीन्स होती हैं सारी डीनेचर हो जाती है। जब प्रोटीन्स डीनेचर होती हैं तो क्या होता है, वो बलाई की शक्ल में ऊपर एक लेयर आ जाती है ना, वो सारी डीनेचर प्रोटीन्स और उसके अंदर फैट शैट होते हैं वो आ जाते हैं। ठीक, तो एक दफा याद रखिए एंजाइम डीनेचर हो गए, वापस अपनी शेप के अंदर नहीं आ सकते। अच्छा, दूसरा एक बात कि ये तो बात हो गई कि डीनेचरेशन के बाद एंजाइम वापस नहीं आते। अगर आप टेम्परेचर लो करते हैं तो तब एंजाइम क्या हो जाते हैं, वो इनएक्टिव हो जाते हैं। और जब एंजाइम इनएक्टिव होते हैं, सपोज हम टेम्परेचर जो है वो 0 पे ले आते हैं, ठीक है, तो 0 पे आके एंजाइम क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव, केमिकल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो सकती। अच्छा, अगर कुछ देर बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद दोबारा से टेम्परेचर 37 या 40 के पास आ गया, तो क्या एंजाइम दोबारा वर्क करेंगे? यस, क्योंकि वो डीनेचर तो नहीं हुए, वो सिर्फ क्या हुआ है कि टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से उनका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता जा रहा है, वो इतना स्लो हो गया कि 0 पे आ गया, लेकिन वो डीनेचर नहीं हुए। लेकिन अगर दोबारा से आप टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे एक्टिविटी जो है वो ज्यादा होती जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो बढ़ता जाएगा। जी क्लियर?